السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی ہم محمد سب کے لیے پارٹ 4 چوتھا ایپیسوڈ جی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز کا جس کا نام محمد سب کے لیے ہے، اس کا یہ چوتھا حصہ یعنی پارٹ 4 ہے۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بڑا تفصیل سے سنا، لیکن کیا آپ کو پتا ہے جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کو عربی میں عام الفیل کہتے ہیں۔ عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا سال، اس لیے کہ اسی سال ہاتھیوں والا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر قرآن پاک کی ایک سورت جس کا نام بھی سورہ فیل ہے، یعنی ہاتھی والی سورت، خاص اس سورت میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کعبے کی عظمت اور لوگوں کے دل میں کعبے کی عقیدت اور شہرت سے جل بھن کر یمن کے گورنر ابرہہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ یمن میں بھی ایک ایسا شاندار کنیسہ گرجا گھر بنایا جائے جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، اور وہ کعبے سے بھی بڑا اور خوبصورت ہو۔ اس سے ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے جو عرب لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں پر بیت اللہ یعنی کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ لوگ اس کنیسہ کی خوبصورتی، اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت سے امپریس اور مرعوب ہو کر کعبہ جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں آنے لگے اور اس کا طواف کرنے لگے۔ اسی خیال سے اس نے ایک بہت بڑا عالیشان کنیسہ اور ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ اسی خیال سے ابرہہ نے ایک بہت بڑا اور عالیشان کنیسہ اور گرجا گھر تعمیر کیا، اور بہت بلند، بہت عالیشان کہ نیچے کھڑا ہوا آدمی اوپر نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے آراستہ و پیراستہ یعنی سجایا دھجایا، اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ اب یمن کے لوگ مکہ نہ جائے، کعبہ نہ جائے، بلکہ وہ اپنا حج، اپنا طواف یہیں پر کرے، اسی کنیسہ میں آ کر طواف کرے اور اسی کنیسہ میں آ کر وہ عبادت کرے۔ حالانکہ عرب میں بت پرستی غالب آ گئی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ بت تھے، مگر دین ابراہیم اور کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے قریش کے قبیلے کے ساتھ ساتھ عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے سب کے اندر یہ ابرہہ کا اعلان سن کر غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ قریش میں خاص طور سے غصہ اتنا زیادہ تھا کہ قریش کے ایک نوجوان نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر وہاں پر گندگی کر دی اور کنیسہ کو پورا آلودہ اور بدبودار کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق عرب کے کچھ مسافروں نے وہاں کنیسہ کے بازو میں ٹھہر کر وہاں پر اپنی کسی ضرورت کے لیے آگ جلائی، جس کی وجہ سے کنیسہ کو آگ لگ گئی اور کنیسہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ملی، اس کی خبر ملی اور بتلایا گیا کہ کسی قریش نے یعنی کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو وہ تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ابرہہ نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس پر سوار ہوا اور پورا ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا اور کعبے پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پورا لشکر ہاتھیوں والا تھا، کیونکہ ابرہہ کا پلان یہ تھا کہ کعبہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور لمبی زنجیریں باندھ کر ان کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کو ہانک دیا جائے، تو ہوگا یہ کہ ایک ہی جھٹکے میں سارا بیت اللہ اور پورا کعبہ نعوذ باللہ زمین پر آ کر گر جائے گا اور ایک ہی جھٹکے میں کام ختم ہو جائے گا۔ جب عرب میں اس پلان کی خبر اور اس حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب اور اس کے جو قبیلے تھے وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ راستے میں کچھ قبیلوں نے ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کی،
लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में ये भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहाँ मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे, एक साल यहाँ एक साल वहाँ। ऐसे अबरहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अबरहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अबरहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अबरहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। मेरी नजर में आप गिर गए। आपको सिर्फ अपने 200 ऊंटों की फिक्र है, जबकि आपको मालूम है कि आपका काबा जो कि आपका दीन है, मैं उसको गिराने, उसको ढाने के लिए आया हूं, और उसके बारे में आपने एक भी बात नहीं की, जरा सी भी गुफ्तगू नहीं की। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि देखिए, ऊंटों का मालिक तो मैं हूं, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, और काबा उसका मालिक मैं नहीं हूं, उसका मालिक तो वो अजीम हस्ती है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अबरहा ने गुस्से में कहा कि तुम्हारा खुदा भी आज मेरे हाथ से उसके घर को बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेनियाजी के साथ जवाब दिया
तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे वो करो। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अब्रहा ने वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंटों को वापस लेकर मक्का तो आ गए, लेकिन काबे के दरवाजे की जंजीरों को पकड़कर दुआ में मशगूल हो गए। साथ में कुरैश की एक बहुत बड़ी जमात थी। सब ने अल्लाह से दुआएं की कि ए अल्लाह, इस अब्रहा के अजीम लश्कर का और इतने बड़े लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत का इंतजाम तू खुद फरमा। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब और सारे लोग पहाड़ों पर और अलग अलग जगह पर फैल गए, क्योंकि उनको यकीन था कि इस लश्कर के ऊपर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। इसी यकीन की वजह से उन्होंने अब्रहा से सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा किया था, यानी अपने ऊंटों के बारे में बात की थी, काबे के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि इस लश्कर पर अल्लाह का अजाब आएगा और अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा। और ये जो दुश्मन की ताकत बता रहा है, जो ताकत शो कर रहा है, जो हाथियों वाला लश्कर लेकर आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इरादे को और उसके अज़ाइम को खाक में मिलाकर रख देगा। बहरहाल सुबह हुई तो अब्रहा ने अपने लश्कर को तैयार होने का हुक्म दिया कि चलो आज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करनी है, उसको ढाना है, उसको गिराना है, वक्त आ गया है। सब अपने अपने तैयारी में लग गए। अब्रहा अपने खास हाथी के पास आया और उसको उठाने लगा, लेकिन हाथी है कि उठने को तैयार ही नहीं। उसको सारे दरबानों ने मिलकर उठाना चाहा, लेकिन हाथी है कि टस से मस हो ही नहीं रहा। वो बिल्कुल पत्थर बनकर जमीन पर जम गया। बड़े बड़े लोहे के नेजों से उसको मारा गया, मगर हाथी ने उसकी परवाह ही नहीं की। यहां तक कि उसके नाक में लोहे के आंकड़े डालकर उसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो हाथी खड़ा ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहाँ जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया, सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्रहा के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरियां गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी, जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहां तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्रहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए। लेकिन अब्रहा, चूंकि ये तो बादशाह था, ये सबसे बड़ा था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को इसको सख्त सजा देनी थी, इसको तड़पा तड़पा कर मारना था, क्योंकि अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था। तो वो फौरन हलाक नहीं हुआ, अल्लाह ने उसको फौरन हलाक नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जहर चढ़ गया, सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ सड़कर गिरने लगा आहिस्ता आहिस्ता। इसी हाल में वो वापस यमन भी लाया गया, और दारुल हुकूमत, जो यमन की दारुल हुकूमत थी, सना पहुंचते पहुंचते उसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया
और वो वहीं पर मर गया। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को हलाक किया और अपने घर की हिफाजत की। आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। 5वें हिस्से में हम सुनेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद दुनिया में क्या क्या अजीब करिश्मे हुए, यहूदी दुनिया में किस तरह खलबली मची, कहां क्या हुआ, दुनिया के कोने कोने में किस तरह सरकार के आने की खबर पहुंची और जमीन से लेकर आसमानी दुनिया तक किस तरह खुशियां मनाई जाने लगी। बस थोड़ा इंतजार करें, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। ओह क्या तो भाई, मुझे है ना एक जब वो उन्होंने कहा ना कि वो हाथी उठ नहीं रहे थे, मुझे तब से ना गूज बम्स आने शुरू हो गए। मतलब वो लिटरली ऐसा लग रहा था ना कि वो मेरे सामने हो रहा है, और जिस तरह ये कह रहे ये actually बोलते हैं ना अपन ऐसा पिक्चराइज करते हैं, राइट राइट। थोड़ा ऐसा स्टक रहते हैं। मैं ऐसी सोच रही हूँ ओके पिक्चराइज। बट देखा, अल्लाह का घर तोड़ने गए थे और अल्लाह ने तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया, हल कर दिया एक्चुअली। वो लाइक ये साइड घुमाएंगे तो खड़ा आएगा ये, लेकिन जब मक्का की तरफ घुमा काबा की तो तरफ नहीं, घुमाते तो नहीं। इनफैक्ट वो चिड़िया पंछी वो भी कंकड़ लेके आ गए थे, एकदम बुलेट की स्पीड से जाते थे। वाह, बहुत सुन के ऐसा डर भी लगा, लेकिन एक बोलता ना ऐसा प्राइड मोमेंट भी था। जी वाह। उधर के लोगों को इतना भरोसा था अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर लेगा। जहाँ पे वो आए ना ऊँटों के बारे में, ऊँटों तो वो उन्होंने तभी भी बोला कि मैं ऊँटों का मालिक नहीं हूँ, बट वो उनके मेरे को अभी भी गूज बम्स आ रहे जब मैं बातें भी कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त गाइस, बहुत अच्छे वीडियोस भेज रहे हो, ऐसे ही वीडियोस हमें भेजते रहिए। तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। आज इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली, 5 लोगों को शेयर करना हम बोल देते 5 लोगों को शेयर करना, हमारे भी और इनके भी वीडियोस। तब तक के लिए कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर कर देना। बाय।